Very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today in this lecture, I am going to start numericals of solvency ratio. The formulas of solvency ratios I explained you in my last lecture. Now in this lecture, I am going to start numericals of solvency ratio. See question number. Before solvency ratio, one question of your book, when question number 26 was left, I am giving solution of this question in this lecture. Question number 26 beta. See question number 26. The ratio of current assets rupees 5 lakh to current liabilities is 2.5:1. The accountant of this firm is interested in maintaining a current ratio of 2:1 by acquiring some current assets on credit. You are required to suggest the amount of current assets which must be acquired for this purpose. बेटा करंट एसेट्स से करंट लाइबिलिटीज़ का जो रेशियो था दैट इज़ 2.5:1. करंट एसेट्स गिवन है 5 लाख आपकी. इन्होंने कहा कि इसके बाद कि जो आपका अकाउंटेंट है ही इज़ इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग करंट रेशियो एज 2:1 और इसके लिए वो कुछ करंट एसेट्स को एक्वायर कर रहा है. तो कितनी करंट एसेट्स एक्वायर कर, यू हैव टू फाइंड आउट दिस. फर्स्टली आप करंट रेशियो से करंट लाइबिलिटीज़ फाइंड आउट कर लीजिए. करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. गिवन करंट रेशियो कितना गिवन है 2.5 एंड करंट एसेट इज 5 लाख. 2.5 इज इक्वल्स टू 5 लाख अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. तो करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू 2 lakh. In order to reduce the current ratio, current assets must be acquired on increase in current assets on credit results in increase in current liabilities also. Whenever we are purchasing any current assets on credit, then it means आपके creditors भी create हो रहे, liability also increasing और asset also increasing. तो it means the amount of current asset will be added in current liabilities also and current assets also. तो मैंने इसको assume कर लिया कि current assets जो amount है आपकी current assets की that is x. तो करंट एसेट्स आपको आफ्टर एक्वायरिंग डेट करंट एसेट विल बी 5 लाख प्लस एक्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ विल बी 2 लाख प्लस एक्स. तो करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ तो इट इज़ 2. तो 2 इज इक्वल्स टू 5 लाख प्लस एक्स अपॉन 2 लाख प्लस एक्स. 4 लाख प्लस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा. 4 लाख प्लस 2x इज इक्वल्स टू 5 लाख प्लस एक्स. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 लाख. Therefore, current assets of rupees 1 lakh should be required on create credit to maintain a current ratio of 2:1. Now see beta question number 29. Balance sheet of X Limited, ये debt equity ratio बेटा solvency ratio का पार्ट है ये. Balance sheet of X Limited shows the following information as at 31st March 2016. Share capital, reserve and surplus, general reserve, long term loans, public deposit, current assets, current liabilities, non current investment, fixed assets, depreciation, written off given है ये. Calculate the ratio indicating the long term and short term financial position of the company. लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, इसके बेसिस पे आपको रेशियो कैलकुलेट करना है बेटा. सी डेप्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है आपको. डेप्ट अपॉन इक्विटी होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस पब्लिक डिपॉजिट. लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज 10 लाख प्लस पब्लिक डिपॉजिट 15 लाख. तो लॉन्ग टर्म डेप्ट इज 50 लाख. पब्लिक डिपॉजिट इज 10 लाख और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपका 40 लाख है. सॉरी बेटा ये 40 प्लस 10 लाख इट इज़ 50 लाख. Shareholders fund, share capital plus reserve and surplus. Share capital is 10 lakh and reserve and surplus is 15 lakh. तो shareholders fund is 25 lakh. Debt equity ratio आपने उसको डिवाइड कर दिया 50 lakh upon 25 lakh. It is 2:1. General reserve is already included in reserve and surplus. जब reserve and surplus की वैल्यू गिवन होती है तो general reserve is the part of reserve and surplus. तो उसको हम अलग से ऐड नहीं करते हैं. शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. करंट रेशियो इज 16 लाख अपॉन 10 लाख. करंट एसेट्स आपकी गिवन है क्वेश्चन में. करंट एसेट इज 16 लाख और करंट लाइबिलिटीज़ 10 लाख. 16 लाख को 10 लाख से डिवाइड कर दीजिए. 16 लाख अपॉन 10 लाख इट इज़ 1.6:1. इज इट क्लियर? डेप्ट इक्विटी रेशियो इज टू फाइंड आउट द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द फर्म. सी क्वेश्चन नंबर 33. कंप्यूट टोटल एसेट्स टू डेप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. टोटल एसेट्स 35 लाख, total debt 32 lakh, creditors 2,50,000, bills payable 20,000, short term borrowings 1 lakh and outstanding expenses 30,000. सी आपकी जो है 3 आइटम्स गिवन है इसमें. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है आपके दैट इज 30,000. टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो इज टोटल एसेट्स अपॉन डेट लॉन्ग टर्म डेट. लॉन्ग टर्म डेप्ट इज टोटल डेट माइनस क्रेडिटर्स माइनस शॉर्ट टर्म डेट. तो शॉर्ट टर्म डेट में आपके क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं. टोटल डेट में से हमने इसको माइनस कर दिया तो लॉन्ग टर्म डेट इज़ 28 लाख. टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो के फॉर्मूले में पोस्ट कर दीजिए. टोटल एसेट्स आपकी कितनी आ गई? इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन बेटा. टोटल एसेट्स आपकी गिवन है क्वेश्चन में.
और that is 35 lakh upon 28 lakh, it is 1.5 ratio 1. Now see question number 36. Total debt rupees 40 lakh, share capital rupees 15 lakh, reserve and surplus 8 lakh, current liabilities 5 lakh, working capital 7 lakh. Calculate total assets to debt ratio. Total assets to debt ratio, total assets upon debt, टोटल लॉन्ग टर्म डेट कितनी हो गई, टोटल डेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़. तो आपकी क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज़ भी गिवन है बेटा. करंट लाइबिलिटीज़ को टोटल डेट में से माइनस कर दीजिए तो यू विल गेट टोटल एसेट्स. टोटल डेट 40 लाख माइनस 5 लाख, 35 लाख आपकी टोटल वो आ जाएगा, दैट इज़ टोटल लॉन्ग टर्म डेट. देन टोटल एसेट्स इज टोटल डेट प्लस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. ये लाइबिलिटी साइड से टोटल एसेट्स फाइंड आउट करिए बेटा. टोटल डेट प्लस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 40 लाख प्लस 15 लाख प्लस 8 लाख, इट इज़ 63 लाख. अब टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फॉर्मूला लगा दिए, 63 लाख अपॉन 35 लाख, इट इज़ 1.8 रेशियो 1. इज इट क्लियर? 1.8 रेशियो 1. तो ये टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो बेटा. डू ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली इन योर कॉपी और नोट डाउन द थिंग्स प्रॉपर्ली बेटा. क्वेश्चंस आपके जो इसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो और सॉल्वेंसी का सेकंड रेशियो आई विल एक्सप्लेन यू, एंड देन टर्नओवर रेशियो विल बी स्टार्टेड इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू बेटा. हैव अ नाइस डे.